Okay, so now we will start pathways of trigonometry. Or in the last class we have already discussed about 2011 and 2012. So आज की क्लास के अंदर हम 2013 को पूरा कंप्लीट करेंगे. So what is happening right now is कि if you look at this part, so one approximate solution of the equation sin x is equals to 0.53 is x is equals to 32. Okay, starting it again. काटे तो ये वाले पार्ट. So this is trigonometry 2013. So we are going to solve another part for this. So this is question number 8, 4024 paper 1 May June 2013. Now what is happening is one approximate solution of the equation sin x is equals to 0.53 is x is equals to 30. So that means basically acute is given to you. So use this value to find the solution of the equation that lies between 90 and 180. So simple, इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आपको यहाँ पे ऑप्ट्यूज निकालें. ऑब्वियसली 90 एंड 180 के बिल्कुल बिटवीन के अंदर ऑप्ट्यूज ही होगा. सो व्हाट विल आई डू इज के आई just minus it from 180. So 180 minus 32 and I'll get this value which is going to be 148. So my final answer is going to be 148 degree. That is going to be a final answer for that. Now in the B part, you guys have already remembered, we have already done trigonometric ratios, relationship between trigonometric ratios of acute and obtuse. So ये हमने करा था, तो ये वही है B वाले part के अंदर. It is nothing new. So now you have triangle ABC is right angle at B and BC is produced to D. AB is equals to 5, BC is equals to 12 and EC is equals to 13. Write down the value of cos ACD. So basically we are talking about obtuse. So हमें एक बात हमने जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, cos का acute का रेशो is basically equals to the ratio of obtuse, but there is one minor thing. वहाँ पे क्या होता है कि साइन चेंज हो रहा होता है, साइन नेगेटिव आ रहा होता है. So right now if you are talking about the ratio of cos ACD जो आपके पास किस तरह से आएगा, so I can say कि that is basically equals to cos BCD. So I'll try to do the working for the ratio of cos BCD. और फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. और राइट नाउ अगर ये हमारा थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो ये आपका एडजस्टेंट हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. सो राइट नाउ आई एम गेटिंग द वैल्यू जस्ट 12/13. सो द आंसर फॉर cos ACD इज गोइंग टू बी नेगेटिव 12/13. दैट्स इट. आपको यहाँ पे आराम से 1 मार्क मिल जाएगा. Now I'm moving towards the next part. और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, 4024 पेपर 2 May June 13. ABCD is a trapezium with BC parallel to AD. E is the point on AD such that BE is perpendicular to AD. BD is equals to 55 degree. AE is equals to 7 centimeter. B is equals to 18 centimeter and BC is equals to 9 centimeter. So basically what is happening in this part is कि आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालनी है बी ए की. सो फॉर बी ए ई ये वाला ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, राइट. सो दिस इज एडजेसेंट एंड दिस वन इज ऑपोजिट. ये आपको गिवन है. सो आई यूज द रेशियो ऑफ 10 थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. और यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी. सो आई राइट 10 थीटा, ऑपोजिट की जगह पे आई राइट 18, एडजेसेंट की जगह 7. सो इट बिकम्स 10 इनवर्स 18 अपॉन 7. So my value is going to be 10 inverse 18 upon 7 and that answer is going to be 60. Theta is equals to 68.749 और final answer जो होगा 68.7 is going to be my final answer. So that's how I'll get 2 marks. अब आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोल रहा है कि आपको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ ABCD. सो ABCD इज दिस थिंग, ABCD ये आपके पास पूरे के पूरे ट्रेपेजियम है, आपको इसका एरिया चाहिए. सो द फॉर्मूला फॉर दिस एरिया इज गोइंग टू बी A इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब यार देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास पता है क्या है. प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये वाली पैरेलल साइड्स तो है बट आपके पास यहाँ पे ED की वैल्यू नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम सपोज टू डू राइट नाउ इज फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ED. तो ED की वैल्यू के लिए हम वर्किंग करते हैं. सो अगेन वी हैव द ऑपोजिट एंड वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ एडजस्टेंट. सो आई ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ED. ED की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन यूज द रेशियो ऑफ 10 थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट एंड आई राइट 10 थीटा और ऑपोजिट की जगह पे आई राइट 18 और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन दिस केस आई राइट 55 अपॉन और ये आ जाएगा यहाँ पे ED
सो इट बिकम्स ई डी वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ 1055 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ई डी. सो इट बिकम्स 18 डिवाइड बाई 1055 एंड दैट इज गोइंग टू बी 12.6037. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई ई डी की. नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ई डी वॉट यू गाइस आर सपोज टू डू, इसको जरा हम देखते हैं. अब फॉर्मूला आपने यूज किया 1/2, सही है, सम ऑफ पैरेलल साइड. द फर्स्ट पैरेलल साइड जो ए की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 9, राइट. एंड फॉर बी आपके पास क्या हो रहा है, बी इज दिस पैरेलल साइड, ये वाली पूरी साइड आपके पास बी है. तो बी के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप 7 और इसके अंदर आप दोनों के अंदर एडिशन कर रहे हो. सो आई विल ऐड 7 प्लस 12.6037 एंड मल्टीप्लाई बाय द हाइट, द परपेंडिकुलर हाइट जो आपके पास आ रही है 18. एंड आफ्टर सॉल्विंग इट हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी मल्टीप्लाई बाय 18 एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी 257.433. और अगर मैं ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखूँ सो आई राइट 257. ये आपके पास एरिया आ गया, आपको 4 मार्क्स मिले, राइट. अब ऑब्वियसली यार इसके अंदर ईडी की वर्किंग भी इंक्लूडेड थी, आपको वही वर्किंग करने की ज़रूरत थी यहाँ पे. सो फॉर बी पार्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज के PQRS is another trapezium. PQR is equals to 112 degrees and PRS दोनों की values given है. Each measured correct to the nearest degree. This is very important. Nearest degree वाली बात. Find the smallest possible value of QRP. So this is QRP. ये वाला एंगल है QRP, ये वाला, सही है. ये हमें फिगर आउट करना है. एंड ऑब्वियसली इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्टी तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली आपके पास पैरेलल एंड यू हैव दिस ऑल्टरनेट एंगल्स विच आर कमिंग राइट नाउ. सो अगर यहाँ पे 41 है सो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा 41 है. सो इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ QRP तो एक तरीके से QRP की जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि 180 में से हमें डिडक्ट करना है PQR वाला एंगल एंड देन हमें माइनस करना है QPR. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट के वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि वी वर टॉकिंग अबाउट लोअर बाउंड. और लोअर बाउंड के अंदर हमारे पास जो केस यूज हो रहा है दिस इज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, या आपके पास रिडक्शन का केस था और यहाँ पे लोअर बाउंड है. तो लोअर बाउंड के अंदर मैंने आपके पास डिस्कस किया था कि व्हेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन कि यू नीड एन ओवरऑल लोअर बाउंड वैल्यू, तो आप पहली वाली वैल्यू को कहाँ पे ले जाते हो, पहली वाली वैल्यू को आप ले जाते हो मैक्स पे, दूसरी वाले को मिनिमम ले जाते हो. बट राइट नाउ बिकॉज कि यहाँ पे हमारे पास है 180 एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज 180 की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे है वो लॉक्ड वैल्यू है, इट्स अ टोटल वैल्यू, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो आपने यहाँ पे जो यूज़ करना है, आपने जो यहाँ पे माइनस कराना है, अच्छा ये यार बी आर पार्ट नो लाइक यू नीड टू कट दिस बी पार्ट, इसे कट करना है. आई एम रिकॉर्डिंग इट वन मोर टाइम, बी पार्ट. Okay, so now what is happening in the B part is they are saying that you need to figure out the value of find the smallest value of QRP, and PQR PRS angle is already given to us. So because of that these two lines I can make alternate angles. अगर यहाँ पे 41 है तो यहाँ भी क्या आएगा, आपके पास 41 आ जाएगा. So if I make the equation QRP is equals to 180 में से we need to deduct this angle, so I'll minus PQR और उसके बाद हम माइनस करेंगे QPR, ये हम एंगल माइनस करेंगे. ठीक है. अब द प्रॉब्लम इज कि दे आर आस्किंग फॉर द स्मॉलेस्ट एंगल. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नियरेस्ट डिग्री की बात. स्मॉलेस्ट की वर्ड का मतलब होता है कि राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर बाउंड. सो इफ आई वांट द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो दैट मीन्स कि मुझे लोअर बाउंड चाहिए, और ये सब्ट्रैक्शन का केस है आपके पास. तो व्हेनेवर जब भी आपके पास यहाँ पे लोअर बाउंड के अंदर सब्ट्रैक्शन का केस होता था तो आप यहाँ पे क्या करते थे, आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखते थे यू आर गोइंग टू राइट दिस वैल्यू एज मिनिमम, और इसको आप क्या करते थे मैक्सिमम पे ले जाते थे. बट राइट नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 180 इन तीनों का सम है
तो 180 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट जिनसे मतलब आपने यहाँ पे इस माइनस कराना है, इसको माइनस कराना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को बिल्कुल ही मैक्स पे ले जाना पड़ेगा. दैट मीन्स कि आई नीड द अपर बाउंड ऑफ दिस वैल्यू एंड अगेन आई नीड द अपर बाउंड ऑफ दिस वैल्यू, राइट. ये आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा. तो 180 में से माइनस कराया, टी क्यू आर नियरेस्ट के बाद यहाँ पे डिग्री लिखा हो, डिग्री का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 2, इट बिकम 0.5. सो अपर बाउंड वाली वैल्यू जो पी क्यू आर की वैल्यू आएगी, यू आर लुकिंग एट दिस वैल्यू, तो पी क्यू आर की अपर बाउंड की वैल्यू आपने उसको ऐड करा देना है. सो आई राइट 112.5. सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0.5 ऐड हो जाएगा, और इसी तरह अगर लोअर बाउंड चाहिए था तो वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता. अगेन आपको क्यूपीआर के लिए भी अपर बाउंड ही चाहिए, तो उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा. एंड फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे, 180 माइनस 112.5 माइनस 41.5, so you'll get this value 26 degree. So this is basically the smallest value of QRP. ये आपके पास इस तरह से सॉल्व हो. Okay, now I'm coming towards the next part. Now what is happening for the next part is basically you are looking at this part, and what is happening right now is के the diagram shows the position of PQR of 3. ये आपके पास तीन, you have 3 things, और ये लोकेशन है. बेरिंग आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 54 डिग्री. आपको पी क्यू की लेंथ गिवन है, क्यू आर की लेंथ गिवन है, पी आर की लेंथ ऑलरेडी गिवन है. कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, सॉरी आर फ्रॉम पी. सबसे पहले आपको बेयरिंग चाहिए आर फ्रॉम पी से कर. सो दैट मीन्स कि आई एम स्टार्टिंग माई बेयरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट पी, यहाँ से लेकर ऑल द वे आई नीड दिस वैल्यू. सो बिकॉज मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो यार एक चीज़ हमें फिगर आउट यहाँ पे कर लेनी चाहिए कि बिकॉज वी आर 3 लेंथ, सो आई नीड दिस रिक्वायर्ड एंगल. मुझे ये वाला एंगल चाहिए, पहली तो बात हमें ये पता होनी चाहिए. अब ये एंगल अगर हमें चाहिए तो यू गाइज ऑलरेडी नो के यार व्हेन एवर आई हैव 3 लेंथ्स, राइट, और यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा. सो व्हेन देयर इज नो पेयर ऑब्वियसली, तो जब आप यहाँ पे यूज़ करते हो कोसाइन रूल, सो आई यूज़ कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc. ठीक है, और ए को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला बेसिकली एंगल ए हो जाएगा, और ये स्मॉल ए हो गया. जैसे आप बी बना लो, इसे आप सी बना लो. ठीक है, सो आई राइट कॉस ए बी स्क्वायर की जगह आई एम गोइंग टू राइट 250 का स्क्वायर, देन आई राइट 160 का स्क्वायर, एंड देन आई राइट 340 का स्क्वायर, एंड देन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 250 इंटू 160. सो दैट्स हाउ आई गेट द वैल्यू ऑफ एंगल है 250 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर 340 स्क्वायर. दैट वैल्यू इज कमिंग -11/32. ये वैल्यू आ जाएगी, एंड देन cos इनवर्स -11/32. आई गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110.1055. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस 110.11. ठीक है, अब आपको बेयरिंग चाहिए थी, एंगल तो हमें रिक्वायर्ड नहीं था ना, हमें तो बेयरिंग चाहिए. सो बेयरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. सो वी नो दिस एंगल, ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल भी पता चल गया. अब राइट नाउ आई एम सपोज टू ऐड दीज 2 एंगल्स ना. अब इन 2 एंगल्स को आपको ऐड करवाना पड़ेगा. सो आई विल राइट 110.11 plus 54, so I'll get this value. So this value right now is coming 164.11. So finally I'll write 164.1. That is going to be my bearing of R from P. अब next वाले part की तरफ move करते हैं. Now in the next part what is happening is कि if you are talking about the next part, the examiner is asking for the area of triangle PQR. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ PQR की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एज यू आर लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, मैं ज़रा इस ट्राइंगल को बना लेता हूँ ताकि हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट हो जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ और क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आई ट्राई टू मेक अ सिमिलर वन. ये वाला हमारे पास आ गया 110.11. This is 250 and this is 160. So these are the only things which are required now right now. तो हमने इसे यूज़ किया. A is equals to 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. ठीक है, हमारे पास 1/2 A की जगह पे राइट 250 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय साइन
110.11. So I'll get the area 0.5 into 250 multiplied by 160 multiplied by sine 110.11. So the value of area which is coming right now is 18780.68516, और अगर हम इसे 3 significant figures के अंदर लिखें, so I'll be writing 18800. So that is going to be my final answer. Okay, now I'm moving towards the next one, and this is basically question number 6. 4024 paper 22 May June or 2013. Again, the diagram shows position PQRS. ये आपके पास 4 पोजीशन है. कैलकुलेट PQR. सबसे पहले आपको यहाँ पे PQR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो PQR इज दिस एंगल, दिस इज PQR. पहले तो मार्क करते हैं. PQR इज दिस एंगल, राइट. सबसे पहले आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट यहाँ पे करना है. एंड जस्ट दे आर गिविंग ओनली 1 मार्क्स. Okay, so if you're going to look at this particular side right now, इसको ज़रा एक्सटेंड अगर हम करें, और इसको एक्सटेंड करने के बाद हमें कुछ ये बात पता चलती है कि यार दिस टोटल एंगल इज़ बेसिकली 180, राइट. और 180 में से जब आप 210 को माइनस कराते हो तो आपके पास ये जो इतना सा एंगल आता है दैट इज़ बेसिकली 30. ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एंगल है वो 210 है, एंड ये जो एंगल है दैट इज़ बेसिकली 180. ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 30. एंड बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट दीज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल द वे आपको एक बात ये समझ में आती है कि ये जो टोटल एंगल है, द टोटल एंगल फ्रॉम हियर टू हियर ऑल द वे, दिस एंगल इज बेसिकली, मैं जरा इस लाइन को ना थोड़ा मूव कर दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट एंगल, इस वाली लाइन से लेकर इस वाले पूरे हो तक. सो दिस एंगल इज बेसिकली 65. तो इफ आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ PQR, सो PQR की बड़ी सिंपल सी वैल्यू होगी. We need to just minus 65 minus 30 and I get this value which is 35 degree. ये आपके पास वैल्यू निकल आएगी. तो सबसे ये बड़ा आसान सा पार्ट था, आपने ये वैल्यू निकाली. नाउ आई एम रेजिंग दीज नंबर्स ताकि थोड़ी सी हमें आसानी हो और हमें चीज़ें थोड़ी सी पता चलती रहें. सो दिस वन इज़ 35. नाउ आई नो. अब आपको ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P to QR. सो देखो, कभी भी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यू गाइज नो कि यार शॉर्टेस्ट, नियरेस्ट, परपेंडिकुलर, क्लोजेस्ट, इन सारी बातों का ना, परपेंडिकुलर, इन सारी बातों का एक ही मतलब ये था कि आप एक लाइन ड्रॉप करोगे P से लेकर यहाँ तक. आपने एक लाइन ड्रॉप करी P से लेकर यहाँ तक, एंड दैट लाइन इज बेसिकली गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद द लाइन ऑफ QR. ये QR के साथ ना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और आपको ना इस वाली की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कितनी आ रही है. सो इफ़ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, इट्स गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर मैं सिंपल सी सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ ना, यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, सो दिस इज़ बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल. और मुझे जो यहाँ पे फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे ऑपोजिट की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आई यूज़ द रेशियो ऑफ साइन. हम साइन का रेशियो यूज़ करेंगे. साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल की जगह के ऊपर आई राइट 35 और ऑपोजिट की जगह के ऊपर, बिकॉज हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो मैं ज़रा इसको x लिख देता हूँ यहाँ पे. एंड आई राइट हाइपोटेन्यूज इज 500. सो यहाँ पे जाके वहाँ पे डिवाइड हो रहा है. सो 500 साइन 35, आई गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो ये आ जाएगा 500 साइन 35 एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी 286.7882 and my final answer is going to be 287. Okay, so now for C part, what I'll do is कि they are asking for calculate the bearing of S from P. So bearing of S from P, that means कि I need this part only. I need this one. So हमें total value तो पता है this is 65. So I need this angle. इस एंगल के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि मैं ज़रा इस वाले ट्राइग्राम को यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, इस ट्राइंगल को. So I'll try to draw this triangle right now. So this one is P, this one is S, and this one is, I guess, Q. 500, this is 90, this is 355, and this one is the north. ठीक है, और हमें यहाँ पे 500, 335, 335, this is theta. So now I'll try to figure out the value of theta. So
हमने रेशो यूज़ किया बिकॉज ये ऑपोजिट है और ये एडजस्टेंट है, तो आपके पास tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज़ कमिंग ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट 335 डिवाइड बाय 500 and that value is coming 33.82, ठीक है। और अगर हमें बेरिंग चाहिए, बेरिंग ऑफ S फ्रॉम P, सो व्हाट विल आई डू, हमें बिकॉज आई नो कि दिस टोटल एंगल इज इक्वल्स टू 65, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये वाला टोटल एंगल 65 के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 65 में से वी नीड टू डिडक्ट 33.822, 65 माइनस 33.822, और जब हम माइनस करते हैं सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज, सो 1 डेसिमल प्लेस में लिखने की कोशिश करेंगे 031.2, सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर 031.2, ये आपके पास बेरिंग का फाइनल आंसर होगा। And that is a complete question. This is a complete part, and if you are looking at this part, so you're getting 6 marks. Okay, now I am moving towards the next question, and this is question number 10, 4024, paper 1-1, October, November 2013. So now what is happening right now is in the diagram, the triangle ABC is equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपको एक बात बता दी कि यार ये तीनों एंगल क्या होंगे, 60 के इक्वल होंगे, ये भी आपके पास क्या होगा 60 होगा, ये भी आपके पास 60 होगा। सबसे पहले जो आपको वो कह रहा है कि बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए आप निकाल के दिखाओ, सो यू नीड टू फिगर आउट दिस एंगल, एंड इफ़ यू गाइज नो कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करता हूँ सो ऑब्वियसली यार ये दोनों लेंथ इक्वल हैं ए बी और बी सी, तो अगर आप लाइन ड्रॉप करोगे तो यहाँ से बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे हाफ के अंदर, सो दिस स्मॉल एंगल इज इक्वल टू 30, और मुझे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऑल द वे बेयरिंग चाहिए, ये है आपके पास बेयरिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एंगल मुझे चाहिए। सो द टोटल एंगल राइट नाउ इज 180 एंड आई वांट दिस स्मॉल एंगल, सो 180 में से जब हमने 30 माइनस किया, 180 माइनस 30, सो आई गेट दिस एंगल एंड विच इज गोइंग टू बी 150, तो इसकी तो वैल्यू आपके पास सिंपल सी निकल आएगी 150। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंड द बेयरिंग्स ऑफ ए, सॉरी फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, अब सी से अगर मुझे ए तक की बेयरिंग निकालनी है सो ऑब्वियसली आई ड्रॉ द नॉर्थ ओवर है। एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये रहा हमने यहाँ पे नॉर्थ बना लिया, या अदरवाइज वी कैन डू वन मोर थिंग इज कि हमें ऑल द वे, चलो कट करो गलत हो रहा है। Okay guys, I'm coming towards the next question, and what is happening right now is कि I'll try to solve this part. This is question number 10, 4024, paper 1 October November 2013. इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा 60 होगा, 3 एंगल्स आर गोइंग टू बी 60। अगर हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट करूँ तो आई नो कि यार ये जो आपके पास अगर मैं एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करूँ, बिकॉज ए बी एंड बी सी आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये एंगल हाफ स्प्लिट हो जाएगा, ये हाफ 30 हो जाएगा, आई नो दिस एंगल। अब आपको बोला गया है कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से अगर ऑल द वे आपको बी तक जाना है, सो यहाँ तक आप जा रहे हो, सो यू गाइज नो कि यार दिस इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक जो एंगल होगा ये 180 का होगा, एंड बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये 30 से बिलोंग करता है, सो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि 180 प्लस 30 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 210। ये आपके पास सिंपल सा ये आंसर हो गया। अब आपसे बोला गया है फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब ए फ्रॉम सी की बेयरिंग निकालनी है, इट्स अगेन अ वेरी इजी पार्ट, तो आपको सिंपल सा काम यहाँ पे ये करना है कि आप ज़रा इसके ऊपर एक काम करो कि नॉर्थ बना लो, बिकॉज फ्रॉम सी के बाद है तो सी के बाद जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसके बाद आप नॉर्थ बनाते हो, और इसको ईजी वे के अंदर थोड़ा सा इसको मैं जल्दी करवा रहा हूँ वरना मैं रिवर्स से भी करवा देता तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी होता। तो आपको ऑल द वे यहाँ तक का एंगल चाहिए, यहाँ तक, सही है। तो इट्स अ वेरी अगेन सिंपल थिंग, सो यू गाइस नो कि यार ये जो है ना हमारे पास ये वाला अगर मैं लाइन नोट करूँ और ये वाली लाइन नोट करूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, सो अगर यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा होगा 30 का एंगल आ रहा होगा। तो सिंपल सा काम आपको ये करना है कि आप पूरी रोटेशन कवर अप कर रहे हो, तो आप कवर कर रहे हो 360 का एंगल, तो आपको सिंपल सा काम यहाँ पे ये करना है कि 360 में से आपको 30 माइनस कराना है, एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 330 डिग्रीज। ये वैल्यू सिंपल सी आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सी वाले पार्ट में आप बोर्ड सेल्स अराउंड अ कोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल ABC. It started at 1338 and finished at 14
21, how many minutes did it take? So you guys already know the formula of arrival time. अराइवल टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता था? डिपार्चर टाइम, मतलब जब आप निकले थे अपने घर से, और जर्नी टाइम आप उसके अंदर ऐड कर दे तो आपके पास अराइवल टाइम आता। तो राइट नाउ आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, और ये जो है ना आपके पास, ये आपका क्या है? अराइवल टाइम। आपको पूछा गया कि जर्नी टाइम कितना लगा, तो अराइवल टाइम में से हम डिपार्चर टाइम को माइनस करेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ जर्नी टाइम। तो हमें जर्नी टाइम के लिए वर्किंग करनी है। सो हम क्या करेंगे? 1421 में से माइनस कराएंगे 1338 को। ये हमें ये पूरा सवाल यहाँ पे कराना है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि जब भी आपके पास इस टाइप के सवाल आते हैं ना, तो यू नीड टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप यहाँ पे आवर्स के अंदर डील कर रहे हो, और यहाँ पे ना मिनट्स 38 कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे कैरी कराओगे तो 1 आवर वहाँ पे जाएगा मिनट्स के कॉलम के अंदर, ये तो हो जाएगा 13, और जब 1 आवर जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 60, और 60 प्लस 21 जो आप कलेक्टिवली जिस चीज़ की बात कर रहे हो दैट इज़ बेसिकली 81। ये आपके पास 81 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 81 में से 38 को माइनस कराना है। अगेन चलो आप कैरी करा दो, सो दिस 7 और ये 11 हो जाएगा। 11 में से अगर आपने 8 माइनस कराया तो ये आपके पास कितना आएगा? 3 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, एंड फाइनली दिस बिकम्स, ये भी 0 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास 43 मिनट्स लग रहे हैं जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो दिस was all about 3 marks. Okay, so now this is another question for October November. This is question number 64024 paper 21 October November 2013. सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि शो दैट CD is equals to 19.93 correct to 2 decimal place. After reading all the information, it is very easy for me to figure out the value of CD. So right now हमें एक बात पता है कि यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सो उसकी वजह से अगर ये आपके पास क्या हो जाएगी, वाली साइड आपके पास 90 के बिल्कुल ऑपोजिट है, दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूस, और CD इज गोइंग टू बी एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट के अंदर मतलब हमारे पास जो रेशियो यूज़ करते हैं हम लोग वो है कॉस का। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और आपने कॉस लिखा, यहाँ पे 50 लिखा, एडजेसेंट की जगह पे आपने CD लिखा, हाइपोटेन्यूस की जगह पे 31 लिखा, ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 cos 50, एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ CD 31 cos 50। तो ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी विच इज़ गोइंग टू बी 19.9264, एंड फाइनली आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ तो ये 19.93, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में दे आर लुकिंग फॉर द लेंथ ऑफ AD। अब AD की लेंथ के लिए आपको क्या करना है? इट्स वेरी अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट। सो फॉर AD की लेंथ के लिए ना हम एक काम कर लेते हैं, वी विल ट्राई टू फिगर आउट द लेंथ ऑफ AC फर्स्ट। हम AC की वर्किंग करते हैं और AC में से हम माइनस कराते हैं CD, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ AD। अब AC की वैल्यू के लिए हमें वी नीड टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, द बगेट ट्राइंगल, वी नीड टू ड्रॉ दिस। दिस इज 50, दिस वन इज 31, दिस वन इज 90, एंड दिस पार्ट इज बेसिकली A एंड दिस पार्ट इज बेसिकली C, और ये जो आपके पास ये आपके पास है B। सो अगर मुझे यहाँ पे AC की वैल्यू चाहिए दैट मीन्स आई नीड हाइपोटेन्यूस, हमें वो दिया हुआ है। सो आई विल यूज अगेन द रेशियो ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा, और एडजेसेंट की वैल्यू जो आपके पास आ रही है यहाँ पे वो आपके पास आ रही है 31, एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको निकालनी है AC की वैल्यू, और थीटा की जगह पे आई एम गोइंग टू प्लेस 50। आपने यहाँ पे 50 लिख दिया, सही है। नाउ AC यहाँ आ गया और cos 50 वहाँ आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। सो 31 डिवाइड बाय cos 50, एंड माय आंसर इज गोइंग टू बी AC इज इक्वल्स टू 48.227 यार है। और अगर मुझे यहाँ पे AD की वैल्यू निकालनी है, सो AD की वैल्यू आपके पास किस तरह से आएगी? AC 48.227 माइनस 19.93, 48.227 minus 19.93, and I'll get this value which is going to be 28.3. 28.297 is my answer, but after rounding it off I'm getting 28.3. I'll get 3 marks for that. Okay, so after solving it, I'm coming towards the B part of it, and what is happening with the B part is that they are saying state the angle of depression of P from S. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ P फ्रॉम S का मतलब ये होता है कि यार आपके पास आप S के ऊपर हो और आप यहाँ पे देख रहे हो,
राइट। तो आपको ऑल द वे देखना है पी की तरफ, तो यू नीड दिस एंगल, ये इतना सा आपको एंगल चाहिए। अब आपको एक बात पता है कि यार ये जो टोटल एंगल है ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि आर एस इज़ अ वर्टिकल क्लिफ ऑफ हाइट। तो ये वर्टिकल आपके पास, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाई है, तो ये एंगल होगा 90। तो 90 में से अगर मैं माइनस करूँ 10 माइनस करूँ 55, सो आई विल गेट दिस एंगल, एंड दैट एंगल इज बेसिकली गोइंग टू बी 90 माइनस 65। ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। Okay, now if I look at this angle, if I look at this second part, so they are saying calculate the distance of PQ between the boards। तो ये दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस है, राइट। तो दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पे एक काम ही करना पड़ेगा, यू नीड टू मेक द इक्वेशन। तो अगर मुझे यहाँ पे PQ की वैल्यू चाहिए, सो PQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, PQ इज इक्वल्स टू PR माइनस QR। तो सबसे पहले ना आई विल कंसिडर द बिगर ट्राइंगल फर्स्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग फॉर द बिगर ट्राइंगल, देखो ये 90 है, दिस वन इज 52 एंड दिस एंगल विच आई नो इज 65, दिस वन इज P, दिस वन इज P, दिस वन इज S एंड दिस इज R। तो सबसे पहले PR की हम लोग वर्किंग करते हैं। PR की वर्किंग के लिए ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट दिया हुआ है, तो आई यूज अ रेशो ऑफ 10। तो हमने यहाँ पे लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसके लिए हम वर्किंग करते हैं ऑपोजिट की वैल्यू, सो आई यूज 10 और देन आई राइट 65। ऑपोजिट की जगह पे आई राइट PR एंड एडजेसेंट की जगह पे आई राइट 52। सो PR इज बेसिकली इक्वल्स टू 52 10 65। ये हमारे पास PR की वैल्यू निकाल ली। आई लीव इट लाइक दिस ताकि मेरी जो ओवरऑल वैल्यू है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। सो आई यूज द स्मॉलर ट्राइंगल नाउ। अब स्मॉलर ट्राइंगल के लिए आई नो दिस इज अगेन R, और ये आपके पास है 52 एंड दिस इज Q एंड दिस एंगल राइट नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज ओनली 55 डिग्री। तो ये वाला 55 डिग्री हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो आई राइट अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और थीटा की जगह पे आई यूज 55, ऑपोजिट की जगह पे हम लिखेंगे QR, और यहाँ पे आई राइट 52। सो QR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 52 10 55। सो नाउ आई नो दीज टू वैल्यूज। अब दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ सॉल्व कराते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ PQ। तो PQ इज इक्वल्स टू PR, द वैल्यू ऑफ PR इज 52 10 65 एंड QR की वैल्यू है 52 10 55। So the value of PQ is going to be 52 10 65 minus 52, and that value is coming 37.25. So I'll write PQ is equals to 37.3। तो आपके पास जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 37.3 का आ रहा है। So if you look at this complete part, so you are getting 5 6 and 9 marks. Okay, now I'm coming towards the next question. This is question number 12 4024 paper 21 October November 2013. In triangle ABC, ये angle ABC is given to us which is 45 degrees, BAC angle आपको given है 65 degree, AC is 5 centimeters shorter than BC. So we'll try to assume basically if you are talking about AC, so the length of AC right now is equals to 5 centimeters shorter than BC, so BC minus 5. So that's how we will begin our working, और हमें ये शो करना है कि BC जो है वो आपके पास इक्वल है 5 sin 65. So let's begin our working. हमें दो एंगल यहाँ पे गिवन है तो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। AC हमें पता है, BC रिलेट कर है, so I'll use the ratio sin A upon A sin B upon B, और A की प्लेसमेंट के ऊपर आई राइट 65 और अपॉन के अंदर आई राइट BC। इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे साइन और ये 45 और सामने आप लिख दोगे AC। नाउ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो दैट इज़ गोइंग टू बी AC साइन 65 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी BC साइन 45। और बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक BC एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ आके BC डिवाइड हो जाएगा साइन 65 डिवाइड बाय साइन 45 एंड इक्वल्स टू BC यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब यू गाइस नो दिस थिंग कि यार आपको यहाँ पे ना AC की वैल्यू पता है, आपको ये बोला गया कि AC इज़ 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन BC। शॉर्टर के वर्ड का माइनस का मतलब था, तो आपने हमें माइनस करा दिया, तो BC तो ऐसे इज आया। अब नाउ इन द प्लेसमेंट ऑफ AC व्हाट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ,
कि यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस ए सी विद बी सी, आपको इसको बी सी के साथ रिप्लेस कराना पड़ेगा. सो आई विल राइट बी सी -5 और ये आ जाएगा sin 65. ये इस तरह से अगर आप लिख दोगे, राइट. ओके, सो नाउ एंड डिवाइड बाय sin 45, ये आपने यहाँ पे लिख दिया. अब आपके पास क्या होगा आफ्टर डूइंग दिस थिंग, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज के इफ यू मल्टीप्लाई, सो दिस इज गोइंग टू बी बी सी इज इक्वल्स टू, अभी बी सी सब्जेक्ट नहीं बना बिकॉज बी सी तो डायरेक्ट आ गया ना, बी सी sin 65 -5 sin 65 एंड डिवाइड बाय sin 45. तो जो आपने यहाँ पे साइन भेजा था उसको ज़रा एक बार वापस से वहाँ भेज दो. सो बी सी इज इक्वल्स टू बी सी sin 45 इज इक्वल्स टू बी सी sin 65, क्रिएट मोर स्पेस, और ये हो जाएगा -5 sin 65, राइट. तो अब हम क्या करेंगे कि व्हाट विल आई डू राइट नाउ इज कि हम नेगेटिव वाले को उस तरफ भेज देते हैं, sin 65 को इस तरह भी रहने देते हैं. तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, इस पूरी चीज़ को उठा के ना इस तरफ भेजते हैं और -5 sin 65 को उठा के हम लेफ्ट साइड की तरफ भेज देते हैं ताकि थोड़ा बी सी ना एक तरफ हो जाए. सो आई राइट 5, ये पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे 5 sin 65 हो गया, और ये बी सी sin 65 माइनस बी सी sin 45. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी को हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास बच गया sin 65 माइनस sin 45, और यहाँ पे आपके पास आया 5 sin 65. सही है. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ आके डिवाइड हो गया, सो फाइनली वील गेट 5 sin 65 डिवाइड बाय sin 65 माइनस sin 45 इज इक्वल्स टू बी सी. सो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि बी सी आपके पास इक्वल आ रहा है 5 sin 65 डिवाइड बाय sin 65 माइनस sin 45. ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये बोल रहा है कि यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ बी सी. बी सी की वैल्यू आपको फिगर आउट करनी है. यू गाइज नोगे यार, बी सी इज इक्वल्स टू 5 sin 65 डिवाइड बाय sin 65 माइनस sin 45. तो आपको यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकाल देनी है. सो यू विल पुट दीज वैल्यूज इन द कैलकुलेटर एंड 5 आपने पुट किया sin 65 डिवाइड बाय sin 65 minus sin 45, and that is going to be 22.7486. तो finally I'll write 22.7. So that is going to be my answer for this second part. ठीक है. अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड वाले पार्ट में आपके पास बी वाले पार्ट के अंदर आपको ये बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू की लेंथ आपको गिवन है, क्यू आर की लेंथ गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पी आर क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है. कॉस पी आर क्यू इज बेसिकली दिस वैल्यू, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है. और सेकेंडली आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू और आपको फ्रैक्शन में दी गई. सो बेसिकली कॉस पी आर क्यू का मतलब ये होता है कि यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ कॉस पी आर क्यू. अब देखो ये वैल्यू बहुत ईजीली आपके पास निकल आएगी. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यू नीड टू यूज़ द फार्मूला. तो आपने एंगल वाला वो कोसाइन रूल वाला फार्मूला यूज़ करना है. सर यूज़ कॉस आर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2pq. और p की जगह के ऊपर आई विल राइट ये वाली वैल्यू p हो जाएगी, ये वाली वैल्यू स्मॉल q हो जाएगी, ये आपके पास स्मॉल r हो जाएगा. तो आई विल राइट 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस r की जगह पे राइट 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10. सो दैट्स हाउ आई विल गेट दिस वैल्यू. और ये आपके पास आ जाएगी कॉस पी आर क्यू एंड कॉस पी आर क्यू, and that value is coming 6 square plus 10 square minus 13 square divided by, that value is coming negative 11/40. तो इसका आंसर हो जाएगा negative 11/40. बेटा यू डोंट नीड टू टेक आउट द एंगल राइट, बिकॉज कॉस साथ लिखा हो तो दैट मीन्स आपको रेशियो निकालना है.
अब आपसे बोला गया राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कॉस पी आर एस। कॉस पी आर एस को अगर हम ऑब्जर्व करें सो इट्स एन एक्यूट एंगल, राइट। आपको ऑब्ट्यूज का रेशियो पता है, इट इज -11/40। सिंपल सी बात वो आपसे ये कर रहे हैं कि आप इसके अंदर उसका रेशियो बताओ, एक्यूट का रेशियो बताओ। तो आपने एक्यूट का रेशियो, बिकॉज आपको पता है कि वो आपके पास दोनों इक्वल होते हैं, सिर्फ आपके पास वो डिफरेंस होता है, तो आप यू विल राइट 11/40, ठीक है। या आपने यहाँ पे लिख देना है, ऊपर से आपने डिड्यूस कर देना है। अब नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और लास्ट वाले पार्ट के अंदर आपको क्या क्या बोला गया वो ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ट्राइंगल DEG हैज़ द सेम एरिया एज ट्राइंगल DEF। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिन्हें हम हाईलाइट करते हैं। DEG और उसका सेम एरिया दोनों का, बट इट इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट, राइट, टू DF, कॉन्ग्रेंट नहीं है। और द पॉइंट G इज़ लोअर देन D, तो ये जो G वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है वो लोअर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कही है कि DE एंड GE इक्वल्स टू इज़ लोअर देन D। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये है वो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो लेंथ है G, वेयर इज G कहीं भी यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है, तो ये जो लेंथ है ये इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। और दूसरी बात, द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात एग्जैक्टली सेम कही थी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात होती है ना आपके पास, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग, और आपने ये जो ट्राइंगल है वो आपको जो ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है, DEG वाला ट्राइंगल बनाना है, तो आपको एक बात यहाँ पे पता है कि यार ये DE की जो लेंथ है ना ये तो आपके पास रहनी है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को बेस कंसिडर करूँ तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि यार ये जो आपके पास हाइट है ना ये एग्जैक्टली सेम होगी। सो व्हाट विल आई ट्राई टू डू इज के आई ट्राई टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, बिकॉज आई डोंट नो कि एग्जैक्ट कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं इसकी एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा और मैं इसकी पैरेलल लाइन बना दूंगा आफ्टर लाइक आई नो कि यार इसकी लेंथ आपके पास ये आ रही है, तो यूल यूज़ अ कंपास एंड यूल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। और आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन यूज़ कर लोगे, यहाँ पे एक कंपास यूज़ करते हुए जो लाइन का डिस्टेंस बेसिकली ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। सो यू विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन जो DE के साथ पैरेलल होगी। पहला काम आपने ये कर देना, ये पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है कंपास को यूज़ करते हुए। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दैट पैरेलल लाइन आपको एक काम और करना है कि यार आपको एग्जामिनर ने, मैं थोड़ा सा एक बार रफली चेक कर लेता हूँ बिकॉज हाँ सही है, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। आप लेकिन यहाँ पे कंपास यूज़ करना बेटा, तुक्का उक्का नहीं लगाना है आपको। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये बोला गया था कि EF की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ G। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यार बेसिकली D है ना, ये आपने सेंटर बनाया अपने कंपास का, आपने यहाँ पे अपनी पेंसिल रखी और आपने एक्सटेंड करते हुए इस तरह से अगर एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, एक रफली मैं यहाँ पे सर्कल आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ विद द सेंटर ऑफ C। आपने क्या करना है, एक यहाँ पे आर्क मार्क करना है जो यहाँ से लेकर ऑल द वे इस तरफ जा रहा होगा। तो मैं थोड़ा इसको लाइन को ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ कि मे बी ये ज़्यादा टच कर जाए, और मैं रफली ज़रा बनाता हूँ जिसका ये चीज़ ना रेडियस होगी और सेंटर ये होगा। तो मैं ज़रा इसको रफली बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब हम G की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं कि G कहाँ कहाँ पॉसिबल है आपके पास। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ कि G यहाँ भी पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है कि हाइट एग्जैक्टली सेम हो रही है। ये देखो ना, हाइट एग्जैक्टली सेम हो रही है। अगर G यहाँ पॉसिबल है तो हाइट ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सेम, दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम है। और ये हमने बेस कंसिडर कराई थी, कॉमन बेस, सही है। एक तो G की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हमारे पास एंड एक G की पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे भी है। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ G राइट नाउ। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे एग्जामिनर ने एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोली थी कि वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। तो बिकॉज कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्ग्रेंट के अंदर क्या होता है कि बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सेम। तो आपके पास G की पॉसिबिलिटी यहाँ तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमें नहीं करनी। कॉन्ग्रेंट के अंदर ये वाली उसने पॉसिबिलिटी काट दी है। सो दैट मीन्स कि G यहाँ पे कहीं होगा, तो G आपने यहाँ पे कहीं मार्क कर देना। सो यू विल ड्रॉ दिस ट्राइंगल और ये आप लाइन एक्सटेंड करते हुए ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर दोगे। नाउ अब सारी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाएंगी। इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस पार्ट, तो आपने देखा यार यहाँ पे हमारे पास हाइट देखो एग्जैक्टली सेम है, दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम आ गई, और बेस ये हो गई आपके पास। एरिया का भी हमारे पास क्लियर हो गया, EF और ये EG की लेंथ भी आपस में इक्वल हो गई। सो बोथ कंडीशन आर फुलफिल्ड, आपको एक मार्क यहाँ पे दे दिया उन्होंने।